आप मुझे बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ और कॉलेज भी फाइनेंस स्पेसिफिक है, कोई और स्पेशलाइजेशन नहीं पढ़ाया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कॉलेज होने के क्या डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको दिखे? आपके यहाँ क्या सिनेरियो है? कितने परसेंट स्टूडेंट्स को कोर फाइनेंस डोमेन में इंटर्नशिप मिला? एंड कैंपस से सबको मिल जाता है या आपको खुद से देखना? बैच साइज क्या है? तो दोनों चीज़ें मुझे समझाओ। अगर फाइनेंस लिया है स्टूडेंट्स ने तो क्या कोर फाइनेंस वाले रोल्स मिल रहे हैं फाइनल प्लेसमेंट्स में? एंड नंबर्स, अगर आप मिनिमम पैकेज क्या रहा होगा, मीडियम पैकेज क्या रहा होगा, हाई पैकेज क्या रहा होगा, कुछ कंपनीज के नाम जो आई हो प्लेसमेंट के लिए रीजन। ओके, स्टूडेंट्स के लिए एक सही एक्सपेक्टेशन क्या होगा अगर कोई आ रहा है तो? प्लस मतलब वो सारी चीज़ें जो उसको पता होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ आके वो सरप्राइज ना हो कि यार, या शॉक ना हो कि यार ये तो पता ही नहीं था। Okay. हम हैं AJNIFM, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कॉलेज है। बहुत कम लोग जानते हैं जो फाइनेंस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, उनमें से एक अच्छा कॉलेज है। बट दिक्कत ये है कि बहुत कम अवेयरनेस है इस कॉलेज के बारे में। लास्ट ईयर हमने इसका एक डिटेल रिव्यू किया हुआ था, दो एक्चुअली रिव्यूज़ थे उसके। तो अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो आप एक बार जाके देखो। बट वो ऑनलाइन रिव्यू था। हमने इस बार कोशिश ये की है कि एक बार फिजिकली कैंपस जाते हैं, क्योंकि जब आप फिजिकली कैंपस जाते हो तो ऑन कैमरा बहुत सारी चीज़ें तो आती ही आती हैं, ऑफ कैमरा किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। इस वजह से हम स्टूडियो के कंफर्ट से बाहर निकल के पैन इंडिया एक एक कैंपस जाके हमने बहुत सारे कैंपसेस का रिव्यू किया हुआ है। उसी क्रम में हम AJNIFM भी आए हुए थे। तो स्टूडेंट से कुछ हमारे साथ बात करेंगे और एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग दे दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप मे बी आप स्टार्ट करो, उनके पास माइक है। Hi, हाय। my name is Shruti Gupta, and I have done BCom honors from Delhi University, ओके। and I had a curiosity towards learning finance, so that's why I joined AGNIFM. ओके, एंड यू आर इन विच ईयर? Second year. सेकेंड ईयर। Yeah. आप? So, hi, my name is Shrishti Saxena and I have completed my graduation from Lucknow University. ओके। So, similarly, I wanted to know more about finance, so I joined AJNIFM and I am a second year student. ओके। Uh, Hi, my name is Ashish Raj, and I did my bachelor's in agriculture. I'm second year student in AJNFM, and I'm curious about the finance from my agriculture background. Like I am interested in ABM side, but later on I moved to the financial section, so I'm interested in the finance. Hi, my name is Simran Mahapatra, and I have completed my Bachelor's of Technology in Electrical Engineering. Afterwards, I've worked as a software development engineer for some time. And when I was doing my job, I understood that anyone can earn money, but you cannot actually grow wealth until and unless you know how to make your money grow on by itself. And that's why I wanted to learn finance, and I tried searching colleges where I can study anything and everything finance, and that's when I got to know about AJ and IFM. I went through their curriculum and I found out that both the years that we do MBA here are completely on finance. There's no other subject that we get to study, and that gives us a whole complete view of all the financial markets, of all the investment opportunities and all the options available to investors and general public. ठीक। That's why I came. आप? Hello there, I am Shivam Kumar Singh. I am second year student of MBA Finance. So I did my graduation from University of Delhi, and after that I appeared for UPSC. And during the preparation of UPSC, I fall in with love with macroeconomics. And during that, I tried to know more about macroeconomics and what can I do. Then I realized that I can do MBA Finance, and there were only two institutes in all India which were only finance based. So I appeared. I did search for AGNFM. I found that president even comes here, and Minister of it comes directly under Minister of Finance. So it has a great exposure. So I chose this. ठीक है, बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है इस कॉलेज के बारे में, right? Exactly. कि मार्केटिंग ब्रांडिंग कुछ अच्छा नहीं है इस कॉलेज के बारे में। बैच साइज क्या है? Batch size is 60. 60 है। हमारे में बहुत बड़ा पेन पॉइंट है मार्केट में बैच साइज को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में। मतलब 200, 250, 300 तो ये तो नॉर्मल से बैच साइजेस हो गए हैं। अब तो 500 प्लस की बैच साइजेस हैं मेजॉरिटी कॉलेजेस के। तो लर्निंग कर्व पे किस तरीके का इम्पैक्ट आप देखते हो? छोटा बैच साइज होने के क्या बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं? एक तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम डायरेक्टली ज़्यादा टाइम फाइंड करते हैं। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो यहाँ पे ऑफ कोर्स बैच साइज की वजह से अच्छा है, तो हमें ज़्यादा टाइम मिलता है। एंड देयर आर इंस्टांसेस वेयर पीपल वांट टू कनेक्ट पर्सनली विद प्रोफेसर। तो यहाँ पे वो चीज़ है कि यू कैन गो डायरेक्टली टू देम एंड कम्युनिकेट योर इवन पर्सनल प्रॉब्लम्स विद देम। सो जो वो एक गाइडेंस मिलती है, नॉट ओनली रिलेटेड टू एकेडमिक, नॉट ओनली रिलेटेड टू कॉर्पोरेट, they have helped us in numerous ways. They have taken sessions related to our health, mental health, physical health. They have talked to us about LinkedIn profiles, how to create them, and how to behave in corporate even before we are going there. So it creates a lot of impact in your आप life. कुछ ऐड करोगे? छोटे बैच साइज का क्या बेनिफिट आपको दिख रहा है?
सी बेसिकली MBA इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, सो इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन नो वन आपको कोई बताता नहीं है कि आपने अगर BBA किया है या BCom किया है या BA किया है तो ही आप फाइनेंस में आओ या एज सच MBA करो। तो छोटे बैच साइज का फ़ायदा ये है क्योंकि एक आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल सकती है। जहाँ 500 लोगों का बैच है, यू नो दैट a faculty standing out there cannot give attention completely on every candidate. You've just a batch of 60, आप एक क्लास में फिट हो जाते हो, सारे टीचर्स की नज़र आप पे ही रहती है। when they are standing on the stage they can see कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। एंड स्पेसिफिकली इन टॉकिंग अबाउट फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है। एवरीथिंग इंटरकनेक्ट्स विद एवरीथिंग एल्स, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्ट्रैटेजी हो, चाहे कोई और मार्केट भी बहुत इंटरकनेक्टेड है। अगर कमोडिटीज़ ऊपर जाते हैं तो स्टॉक्स ख़राब कर सकते हैं, तो एवरीथिंग इज़ इम्पैक्टेड बाय एवरीथिंग। सो एक छोटे बैच साइज़ का फ़ायदा ये है कि आपको अनडिवाइडेड अटेंशन मिल सकती है एंड यू कैन रीच आउट टू पीपल whenever and wherever you find necessary. And specifically the college itself provides you all the kind of opportunities that you would want, whether it's sports, whether it's the library facility, whether it is connecting with your mentors. We also have this alumni connect session where we have met our alumni. We also have our mentors who have जो हमारे खुद के alumni रहे हैं, and they have cleared CFA and CMT, जो certifications globally जाने वाले हैं, तो उनसे कनेक्ट करने का मौका मिलता है आपको, जो आपको ऑब्वियसली 500 के बैच साइज में आप कितने लोगों से और कितना ही अटेंशन या रिसोर्सेज आप पा पाओगे। ठीक है, बड़े बैच साइज़ का इम्पैक्ट हमने देखा इस बार प्लेसमेंट्स के टर्म्स में, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस को स्ट्रगल करते हुए देखा हमने। तो और ये प्रूवन फैक्ट है कि जैसे जैसे बैच साइज़ बड़ा होता है क्वालिटी पे इम्पैक्ट आना तय है। ओके, आप मुझे बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ और कॉलेज भी फाइनेंस स्पेसिफिक है, कोई और स्पेशलाइजेशन नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कॉलेज होने के क्या डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको दिखे? एक तो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो भी पर्सनालिटीज़ हैं, अच्छी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनसे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हम उन्हें यहाँ पे अपने कॉलेज कैंपस में इनवाइट कर सकते हैं, वो अपने सारे इंसाइट्स शेयर करते हैं एंड दे ऑल्सो वी गेट टू नो देम बेटर, दे गेट टू नो अस बेटर अलॉन्ग विद डैट। एक हमारा जो डिग्री है वो भी JNU से एफिलिएटेड है। ओके, तो मतलब उसका डिग्री आपको JNU के मिलती है? हाँ जी, MBA की? ओके, यस, तो उसका भी हमें बहुत एडेड एडवांटेज रहता है। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमें जैसे प्लेसमेंट्स के लिए रीच आउट करना है, तो जब हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ उनके थ्रू रीच आउट करते हैं तो थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। ठीक है, प्लेसमेंट्स की बात की आपने, उससे पहले हाँ बिल्कुल, कोई कुछ पे ऐड कर सकता है? ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई डिड माई इंटर्नशिप एट IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो लोधी रोड में है। तो सिंस दिस इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट, तो जो भी UPSC क्लियर करके आते हैं, देयर इज़ अ PTC कोर्स, तो वो यहाँ पे फाउंडेशन बैच करने आते हैं IRAS। सो माई जनरल मैनेजर वॉज Mr. Navgoyal sir, and there was one ma'am as well, and the director as well. They all knew this institute because they have at some point of time they have came here, और सारे प्रोफेसर्स को by name and with a fond memory वो याद करते हैं। तो वो जो एक कनेक्शन है ना इनका, that you are recognized in every PSU you go, तो वो चीज़ कहीं और नहीं मिलने वाली। They helped us in a way कि दूसरे नहीं करेंगे। वो PSUs में जनरल मैनेजर दूसरों को इतना entertain नहीं करता, बट वो हमें कर रहे थे। So it is thanks to this Ministry of Finance batch. Yes, it helped a lot. One more thing that I would want to add to the same, actually आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा एक कोर्स है एंड देयर इज अनदर कोर्स विच इज़ MBA FM, जहाँ पे हमें जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही पढ़ने आते हैं फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं। तो जो भी टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, जो भी फैकल्टी हमें पढ़ाती है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी पढ़ाते हैं, वेदर इट्स डिफेंस पर्सनल, जो इंडियन एयरफोर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवी ऑफिसर्स हैं। एक तो यहाँ का इन्वायरमेंट ही आपको एक बहुत अलग मिल जाता है, विच वुड कीप यू ऑन योर टोज कि आपको कुछ करना है लाइफ में बड़ा, बिकॉज यू आर एक्चुअली सराउंडेड बाई पीपल हु हैव अचीव्ड थिंग्स इन लाइफ। राइट, सो वो वाला चीज़ रहता है एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट यू गेट, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉलेज, सो दे वांट कि क्वालिटी एजुकेशन आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी देना चाहेंगे, बिकॉज द मूवमेंट अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सही से काम नहीं करेगा, इट वुड
affect the general public. राइट, तो वो चीज़ आपको हमेशा यहाँ देखने मिलेगी. नेटवर्किंग का भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता होगा आपको, right? डेफिनेटली. क्योंकि बहुत आई डोंट नो कि ऐसा कोई और इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ पे इस तरीके के डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आपके साथ पढ़ रहे हो, और कहा जाता है कि नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, राइट. सो उसकी एक्चुअल मैंने मतलब नेटवर्किंग का मौका मिल रहा है आप लोगों को, बात कर सकते हो आप लोगों से. बहुत ज़्यादा लाइक चाहे आप हमारे यहाँ पे टी ब्रेक जब होता है तो आप तब उनसे बात कर सकते हो. यू ऑल्सो गेट टू प्ले विद देम. जब स्पोर्ट्स टाइम होता है हमारा तो वी गेट टू प्ले विद देम, वी गेट टू टॉक टू देम, लाइक यू नो हम साथ में मील्स शेयर करते हैं. तो दैट्स व्हेन वी आस्क देम लाइक यू नो अबाउट देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. लाइक वी ऑल्सो हैड एन इवेंट जहाँ पे हम लोगों ने खुद यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट की थी. एंड आफ्टर दैट वी वर सिटिंग टुगेदर, वी वर आस्किंग कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एंड स्पेसिफिकली लिसनिंग टू देयर लाइफ एक्सपीरियंस एज वेल गिव्स यू अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, जो आई थिंक जैसा कहते हैं कि ज़िंदगी आपको सबसे ज़्यादा सिखाती है. Right. कोई कोर्स से भी ज़्यादा आप ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा सीखते हो. एंड यू गेट टू शेयर योर लाइफ विद पीपल जिन्होंने ज़िंदगी जी है और अभी भी वो सीख रहे हैं अपनी लाइफ में. Right. तो वो उस चीज़ का बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा. ठीक है. हाँ, I'll add 2 points. Actually, the batch size and the course curriculum. So I came from a PCB background. I did my 12th in physics, chemistry and biology, ठीक है. and then agriculture. So most the perception is कि finance में जो आता है वो या तो BCom से आता है या commerce background या फिर engineering background. Coming from a biology background, but मुझे लगा कि जो batch size था उसने मुझे बहुत help किया. मुझे एक personal attention मिला. मोस्ट ऑफ अस आर फियर अबाउट द अकाउंट सेक्शन कि आपको अकाउंट्स में प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि हमने कभी लेजर नहीं देखा होता, हमें नहीं पता होता कैसे बुक्स काम करती हैं. तो छोटे बैच साइज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि आप अदर डिपार्टमेंट से भी आके आप उसको ईजी टू लर्न हो जाता है क्योंकि पर्सनल अटेंशन होते हैं. ठीक है. दूसरा जो हमारा कोर्स करिकुलम है, लोग फाइनेंस में नॉर्मल एज ए फाइनेंस इतने डीप नहीं जाते हैं. हमारे एक म्यूचुअल फंड का एक सब्जेक्ट है कमोडिटी, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन. तो हम डेडिकेटेड एक टाइम देते हैं पर्टिकुलर डोमेन के लिए. तो हमें पता होता है कि हमें किस डोमेन में जाना है. जैसे मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कमोडिटी सेक्टर के लिए क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का. दूसरा कमोडिटी के लिए मैंने रिपीटेटिव यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर ली, कमोडिटी एज ए सेक्शन, देन करेंसी. तो आपको एक बेस बन जाता है कि आपको कैसे आगे मूव ऑन करना है इन करियर. आप रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से सीख लेते हो. तो आप ओवरऑल इकलौता कॉलेज जो मुझे लगता है कि जो इंडिया में है जो एज ए होल फाइनेंस को डोमेन देता है कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. जिसका फाइनेंस करिकुलम इतना इंटेंस हो स्पेसिफिकली, राइट. जो कोई Exactly. और स्पेशलाइजेशन है ही नहीं यहाँ. नहीं. ठीक है. इंटर्नशिप्स पे आते हैं एक बार. बहुत अलग अलग कॉलेजेस में जाने के बाद जो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट फाइनेंस स्टूडेंट्स के साथ देखने को मिला वो ये है कि आपने फाइनेंस ले रखा है बट जो इंटर्नशिप मिल रही है स्टूडेंट्स को वो रेलेवेंट इंटर्नशिप्स नहीं हैं. तो जब रेलेवेंट इंटर्नशिप आपको नहीं मिलती है तो फिर जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपने पढ़ा और जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात आती है तो इंटर्नशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होता है. तो क्वालिटी इंटर्नशिप ना मिलने की वजह से दिक्कत ये होता है कि जो थ्योरेटिकल चीज़ें बच्चों ने क्लास में पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल या रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है वो समझ नहीं पाते हैं. और फाइनेंस लिया स्टूडेंट ने, उनको इंटर्नशिप मिल रहा है सेल्स में या इररिलेवेंट, मतलब उससे कोई लिंकेज ही नहीं है. तो आपके यहाँ क्या सिनेरियो है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स को कोर फाइनेंस डोमेन में इंटर्नशिप मिला, एंड कैंपस से सबको मिल जाता है आपको खुद से देखना होता है? ओके, मैं इसका ब्रीफ आंसर करूंगा क्योंकि मुझे जो इंटर्नशिप मिली थी कैंपस के थ्रू मिली थी. ठीक आई डिड माई इंटर्नशिप एट MC Cube. इट वाज स्टार्टेड बाय द एक्स CEO MD ऑफ MCX. ठीक सो करेंटली वो 2 साल से कंपनी फंक्शनिंग में है और वो कंसल्टेंसी एंड करेंसी कमोडिटी एवरी सेक्शन. तो मुझे जो इंटर्नशिप में था वो मेरे लिए एकदम पैरेलल इक्विवेलेंट था कि जो मैंने यहाँ सीखा मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे वहाँ पे करा. ठीक तो मोस्ट ऑफ अस जो हमें इंटर्नशिप्स मिली हमने कॉलेज के थ्रू लिया. हाँ, इफ समवन हैज इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर डोमेन जो नहीं है वहाँ पे तो वो वहाँ जाएंगे. ऑब्वियसली बात है किसी के पास अच्छे कनेक्शन है. एवरीवन, अच्छा आपने बोला कि नेटवर्किंग इज नेटवर्थ. तो नेटवर्किंग किसी की अच्छी है तो वो वहाँ पे जाएगा रेलिवेंट. बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे पास इंटर्नशिप्स आते हैं वो रेलिवेंट होते हैं मोस्ट ऑफ अस कि हम उसमें पर्टिकुलरली ट्रेन हो सकें. आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? Basically, actually, I secured my internship, although I secured it from outside and my sources, but I was inclined to go in equity research. ठीक है. So there were companies lined up, but I had a source, so I got my internship at Religare. But what I learned here and what the teachers and the faculty helped me understand, I was able to put that knowledge there in the actual practical world, and it helped me a lot, and I was able to perform good in that domain specifically. ओके. So I आपका had a very good. एक्सपीरियंस? सो आई डिड माई इंटर्नशिप इन मोतीलाल ओसवाल एंड मेरे लिए बहुत हेल्पफुल ये रहा कि जो भी यहाँ पे वी लर्नड इन द कोर्स वर्क इन द फर्स्ट ईयर इट वेरी वेल अलाइंड विद वॉट आई gained in the practical exposure that I got in the office. So ऐसा नहीं था कि I was unfamiliar with any concepts. If I have heard any new jargon, no. So whatever we studied here, it was very applicable and relevant
and I could apply it very well when I tried hands-on learning and all the concepts, jargons जो भी यहाँ पे पढ़े थे, I was able to converse with those professionals as well. I wasn't कि ऐसा नहीं था मैं less confident थी कि मुझे पता नहीं है. There was nothing like that. तो curriculum was very well aligned with the practical exposure जो मुझे वहाँ पर मिला. ठीक है. हाँ. तो मुझे अपना इंटर्नशिप एक कनेक्शन के थ्रू मिला था, माय पर्सनल कनेक्शन. सबसे मेन चीज़ जो होती है कि इंटर्नशिप में आप कुछ सीखने जाते हो, बट हमें जो यहाँ पे सिखाया गया था, हमने जो पढ़ा था, फॉर एग्जांपल मेरा इंटर्नशिप ईसीबी में था और हमने यहाँ पे पाइथन सीखी थी, स्पेशली इन फाइनेंशियल डोमेन. तो उससे हमने फोरकास्टिंग सीखी थी. व्हेन आई वेंट देयर आई डिडंट हैव टू लर्न थिंग्स फ्रॉम देम. दे गेव मी वर्क, आई डिड इट. इट वाज लाइक आई वाज जॉब रेडी. तो वो जो एक एक्सपीरियंस था ना मेरे लिए, इट हेल्प मी इन बूस्टिंग माई मोरल, माई कॉन्फिडेंस एज वेल. दे जस्ट गेव मी वर्क एंड आई डिलीवर्ड इट बिफोर टाइम. तो वो चीज़ शायद कहीं और नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमें ज़्यादातर यही बताया जाता है कि इंटर्नशिप पे आप जाओगे, कुछ सीखोगे, कुछ जानते होगे, कुछ वैल्यू एड ऑन होके आएगा. बट दे वर सो इम्प्रेस्ड कि हाँ इनको हर चीज़ आती है. सो इट वॉज लाइक कि यू डोंट नीड इंटर्नशिप टू लर्न, बट टू शो देम दैट व्हाट स्किल सेट यू हैव. तो वो एक चीज़. इंटर्नशिप पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है एमबीए स्टूडेंट्स के साथ वो एम्प्लॉयबिलिटी का है. अभी ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया. जो बजट आया उससे पहले जो डेटा आया गवर्नमेंट का, उसमें गवर्नमेंट ने पहली बार इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि ग्रेजुएट्स जो हैं इंडिया में उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जस्ट 51%. ठीक है. अब उसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं. पहला तो यही है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की कमी है, थ्योरेटिकल ही ज़्यादातर चीज़ें हैं. दूसरा जो पढ़ाया जा रहा है वो भी आउटडेटेड है. जैसा आपने कहा कि आपको वो चीज़ें आती थी पहले थ्योरेटिकल बेसिस पे, फिर जाके आपने वहाँ पे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया. तो दूसरा बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि आउटडेटेड करिकुलम मेजॉरिटी कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है. तीसरा बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं उस करिकुलम को, उन्होंने खुद कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है. राइट. वो बेसिकली टीचर जो है इंडिया में उनकी स्थिति ये है कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद अगर कुछ नहीं बन पाते हैं तो फिर टीचिंग में आ जाते हैं, क्योंकि बाई चॉइस बहुत कम लोग ही टीचिंग एज प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं. तो एक डिस्कनेक्ट इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में है. बहुत सारे रिसर्च पेपर्स उस पर आ चुके हैं. तो जो फैकल्टीज़ आपके यहाँ पे हैं, इंटर्नशिप की बात आपने कर ली, कोर्स करिकुलम आपने बताया कि रेलिवेंट है तो ही आप वहाँ जाके उसका एप्लीकेशन आपने सही तरीके से किया. जो फैकल्टीज़ वाला पॉइंट है कि मेजॉरिटी फैकल्टीज़ कॉलेजेस में ऐसी हैं जिन्होंने कभी खुद इंडस्ट्री में काम नहीं किया है. अब इस प्रॉब्लम को हमने लगातार हाईलाइट किया हुआ है, लगातार 3-4 सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं. अभी यूजीसी ने एक पीओपी करके, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके, एक डेजिग्नेशन क्रिएट किया कॉलेजेस में ताकि उस गैप को ब्रिज किया जा सके. तो आपके यहाँ प्रोफेसर्स की क्या हालत है? क्या ऐसे फैकल्टीज़ भी हैं जिनके पास खुद रियल कॉर्पोरेट में काम करने का एक्सपीरियंस है, एंड अगर हैं तो कितने % हैं? तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेसर हैज़ कॉर्पोरेट एक्सपोजर. कुछ फैकल्टीज़ के नाम बताओ. आप जैसे डॉक्टर जया भल्ला, वो कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को देखती हैं. ठीक है. तो सी हैज़ लेड द एजेएनएफएम इटसेल्फ. तो उनके पास ही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. सी नोज हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स. प्रोफेसर ऋषि मेहरा, ही हैज़ बीन अ डेरिवेटिव एक्सपर्ट. म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, टेक, और ये चीज़ें उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाई. ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस. नाउ हिमांशु अरोड़ा सर, ही इज़ अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर. वो अभी भी करेंसी, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स आज भी वो करते हैं, खुद भी ट्रेड करते हैं. सो उसमें कोई लैग नहीं है. इवन टॉकिंग अबाउट पाइथन एंड ऑल, तो हमें डॉक्टर आलोक यादव सर ने पढ़ाया था. तो ही हैज़ बीन इन ही इज़ अ फ्रीलांसर, ही हैज़ हिज ओन बिजनेस. तो जो लैग रहता है, एंड देयर विल बी अ लैग बिटवीन द थ्योरी एंड बिटवीन द इंडस्ट्री, वो रहता ही है. बट एट एजेएनएफएम वो बहुत कम है. विद सच्चे बता रहे हैं, वो बहुत कम है. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप में ज़्यादा लैग है थ्योरी एंड इन व्हाट अप्लाइड इट, तो आप जब इंटर्नशिप पे जाते हो तो फील होगा आपको. राइट. हमें नहीं फील हुआ. तो उसका रीज़न यही है कि कोई ऐसी चीज़ है जो लैग को कम कर रहा है. तो वो इनका कॉर्पोरेट एक्सपोजर, वो इनका इंडस्ट्री नॉलेज है. दे आर एक्सपर्ट इन दीज फील्ड्स. एवरीबडी हैंड्स डाउन. ओके. आप कुछ ऐड कर रहे थे? Sure, I would like to add to it obviously. एक चीज़ है कि मैं इसमें अपने इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. स्पेसिफिकली मैंने अपना इंटर्नशिप जो किया है वो फिनटेक मेरा इंटरेस्ट था, बिकॉज आई come from an engineering background and I have done software engineering. So when I went to work in, I did my internship with Invest My Funds. It is a wealth management firm and they do mutual fund advisory. And even when I had studied in our classes, हमारे एक तो टीचर्स जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको करंट न्यूज़, करंट डेटा हम क्लास के बीच में
ट्रेडिंग व्यू और जैसे जो टर्मिनल्स नॉर्मली ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स और हर जगह यूज़ होते हैं वही हम स्टडी करते हैं, लाइक निफ्टी हो गए या जो भी इंडेक्सेस हैं, निफ्टी, हैंसेंग, निक्केई, हम एग्जैक्टली उनके चार्ट तभी देखते हैं ऑन रियल टाइम बेसिस ठीक है। एंड दे हैव देयर प्रिंसिपल्स वेरी क्लियर ऑफ एंड दे ऑलवेज टेल यू उनका प्रिंसिपल क्या है लाइफ में एंड व्हाट्स देयर प्रिंसिपल दैट दे फॉलो when they trade or they invest and they always give us the liberty to select our own strategy towards it. And coming to my internship, when I was working in this internship, I actually developed the back end of a robo advisory app which could recommend people on mutual funds, like आपके गोल के बेस्ड पे आप कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. ठीक है। तो अगर रोबो एडवाइजरी हमने क्लास में डिस्कस नहीं की होती, अगर हमने फाइनेंशियल गोल प्लानिंग डिस्कस नहीं की होती, तो आई डोंट थिंक मैं कभी ये कर पाती. राइट। And specifically, I think I would want to suggest all the people who are also studying and want to work in a field, उनको हमेशा अपने strengths पे bank करना चाहिए. Right. Like whatever you're being taught and what are your strengths, what are your interests, और आप उसको connect करो आप अपने internships में. That's when you would be more employable and ये problem solve हो सकती है उसी वे में. ओके। फाइनेंस में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जो है वो हमेशा से कमी रही है और अभी हायरिंग 2030 तक और भी होने वाला है। जीसीसी जिस तरीके से इंडिया में ओपन हो रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी वाली क्राइसिस को फिक्स करने का वही तरीका है जो आप लोगों ने बताया कि जो करिकुलम है, जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, उस चीज़ को आप पढ़ाओ एंड ट्रेन फैकल्टीज़ के थ्रू पढ़ाओ। ये एक मेजर चैलेंज है जो मैं मेजॉरिटी कॉलेजेस में देख रहा हूँ। प्लेसमेंट्स पे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी एमबीए करने जाते हैं उनको प्लेसमेंट एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है उनके लिए, ऑलमोस्ट सबके लिए ही होता है। तो आपके यहाँ पे प्लेसमेंट, क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट पहले तो वो बता दो, फिर नंबर्स अगर आप बता पाओ। चूँकि बैच साइज छोटा है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ और सेफली अज्यूम किया जा सकता है कि क्वालिटी प्लेसमेंट मिलता होगा स्टूडेंट्स को। चूँकि बड़ा बैच साइज है तो फिर क्वालिटी पे फोकस कर पाना डिफिकल्ट है। तो दोनों चीज़ें मुझे समझाओ, अगर फाइनेंस लिया है स्टूडेंट्स ने तो क्या कोर फाइनेंस वाले रोल्स मिल रहे हैं फाइनल प्लेसमेंट्स में, एंड नंबर्स अगर आप, मिनिमम पैकेज क्या रहा होगा, मीडियम पैकेज क्या रहा होगा, हाईएस्ट पैकेज क्या रहा होगा, कुछ कंपनीज़ के नाम जो आई हों प्लेसमेंट के लिए रिसेंटली। Sure. So majorly जो यहाँ पे प्लेसमेंट आती है दैट इज मोर ऑफ स्टूडेंट फोकस्ड कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं. ठीक है। And we have had placements across all kind of roles. We have sales profiles, we have had like fintech profiles, we have had profiles in mutual funds, also in exchanges. आप देखते नहीं होंगे कि exchanges कहीं पर भी hiring के लिए आती है, but हमारे students exchanges में भी जाके काम कर रहे हैं. तो regulatory, compliance, exchanges, like mutual fund वाला sector, sales, fintech, all kind of domains that you can think of, जिसमें कोई इंसान कभी काम करना चाहेगा फाइनेंस में, you get them here. You have global MNCs that come here. You get to see S&P global, आपने नाम सुना होगा. S&P ने काफ़ी सारे इंडेक्सेस बनाए हैं, तो वो हमारे यहाँ फिनटेक के लिए आई थी. We have had NSE come over here. We have had commodity exchanges, MCX और NCDX भी आ चुकी हैं. So we get the kind of quality that anyone would want to have जब आप कोई भी नौकरी स्टार्ट करना चाह रहे होते हो. And also I would like my friends to add. नंबर्स में अगर आप बता पाओ तो। Sure. I would like to add a little bit on what हाँ, Simran बिल्कुल। also said कि मतलब we do see a range of opportunities that come here for placements, and this is मतलब good thing about here कि it is student focus को आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, सो दैट दे वुड ट्राई कि वो यहाँ पर आए दैट कंपनी. ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़ कि इफ़ यू हैव द नॉलेज, बिकॉज दिस इज़ यहाँ के इंस्टीट्यूट का एक जो यूएसपी है कि नॉलेज बहुत अच्छी है, लाइक हाई प्रोफाइल है एंड अपडेटेड करिकुलम है. तो इफ़ यू हैव द नॉलेज एंड इफ़ यू हैव द राइट स्किल्स, बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स, देन आप उसको अप्लाई कर लोगे एंड यू विल बी हायर्ड. ठीक है। एंड यू विल गेट प्लेस्ड इन विच एवर कंपनी कम्स है जो आपके मनपसंद प्रोफाइल की है. And focusing on the numbers, we have highest CTC until now it's 12 LPA. Okay. And median average is 8 LPA. एवरेज 8 है। Yeah. और मीडियन क्या रहा होगा? Median 6. 6 LPA। Yeah. तो क्या लग रहा है कि जिस कैलिबर का कॉलेज है, नंबर्स में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चीज़, जो कि मैं इसको, अगर मैं टियर 1 नहीं तो मैं टियर 2 में तो उसको रख सकता हूँ सेफली. Sure. सब कुछ है, बड़ा नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बैकिंग है, फैकल्टीज़ अच्छी हैं, कोर्स करिकुलम बहुत अच्छा है. तो दिक्कत कहाँ आ रही है? 6 लाख का मीडियन पैकेज मुझे नहीं लगता है जस्टिफाइड है इस कैंपस के लिए.
आई बिलीव कि ये जो कैंपस है इट्स लाइक अ हिडन जेम हियर कि मतलब फाइनेंस में बहुत फोकस है बट अभी तक लोग इसके बारे में इतना अवेयर नहीं है एंड फॉर दैट मैटर कंपनीज भी शायद इतना अवेयर नहीं है सो दिस इज़ इन अ ग्रोइंग स्टेज राइट नाउ सो मतलब बिकॉज इट हैज़ वेरी वेल ऑफ ऑल द फैकल्टीज नॉलेज एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी धीरे धीरे इट इज़ ग्रोइंग सो फ्यूचर में इसकी बहुत मतलब हाई डिमांड है होने वाली है एंड बेटर मोर कंपनीज विद बेटर पैकेजेस should be coming here because this is a very treasure trove for finance field especially here. I would like to add, yeah. सो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होते. सबसे पहला फैक्टर है कि MBA फाइनेंस नया कोर्स है, एज इन कि इससे पहले PGDM होता था, तो उस वजह से भी ये ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है MBA फाइनेंस की. देन देयर इज़ सेकेंड रीज़न कि सबसे मेन, और ऐसा नहीं है कि हमारी विजिबिलिटी नहीं है, एवरी इंडस्ट्री आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, कहीं भी देख लो, बड़ी कंपनीज़ में हमारे एलुमनाइज हैं, ठीक है, वो PGDM से गए थे या अभी MBA से जा रहे हैं, इट डजेंट मैटर, एवरीबडी नोज कि हाँ देयर इज AJNFM, इट इज़ नॉट अ हिडन जेम, इट मे बी अ जेम बट स्टिल इट हैज़ टू प्रूव. तो उसका एक और रीज़न ये हो सकता है कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट है. ये गवर्नमेंट फोकस था, ये 1992 में बना था, तो ये गवर्नमेंट ने बनाया था कि कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट होगा टू ट्रेन द ऑफिसर्स. सो एक फोकस उधर चला जाता है, और ये कंपेरेटिवली न्यूअर प्रोग्राम है. इट नीड्स मोर अटेंशन, इट नीड्स मोर अकाउंटेबिलिटी, और वो विजिबिलिटी धीरे 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 आएगी. मुझे नहीं लगता वो अभी है या उतनी हो पाएगी, लेकिन वो ऑफ कोर्स आगे आएगी बिकॉज द फोकस हैज़ बीन चेंजिंग. द डायरेक्टर सर हैज सेड मल्टीपल टाइम्स in his address to us that they will be giving more focus, and there are actions, but it will certainly take time. तो ऐसा है. प्लेसमेंट सेल है आपका फुल फ्लेजेड फंक्शनल प्लेसमेंट सेल? We have a placement cell, and adding to that जो शिवम कह रहा था, because I would want to highlight another thing as well. हमारा कोर्स जो है वो अपेरेंटली बहुत ज़्यादा एसेंट्रिक है. यू वॉन्ट गेट अनदर कॉलेज जो 2 साल आपको फाइनेंस पढ़ाता हो. तो ऑब्वियसली जब आप कुछ अलग कर रहे होते हो तो लाइक यू नो आपको शुरुआत में दिक्कतें आती है. फर्स्ट. सेकंड, विथ टाइम ये प्रूव हो जाता है, बिकॉज जिन्होंने लाइक मीडियन कंपनीज या मीडियन पैकेजेस में भी शुरू किया है, यू गेट टू सी द करियर प्रोग्रेशन. यू गेट टू सी आर alumni टू बी एट BCG, Boston Consulting Group. We have our alumni in American like you know Express as well. They also are abroad. I have my alumni who are sitting in Canada and working. I have my alumni who are in Germany and working. So with years our quality education proves itself. Because जब आप एक ऑफिस में बैठे हो और बाकी आप ऐसे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स के साथ बैठे हो जिन्होंने 2 साल फाइनेंस नहीं पढ़ा है, तो उनके पास एक बहुत ही नैरो लाइक यू नो विजन होता है मार्केट्स को लेके. बट व्हेन 2 years you have studied finance and you are actually studying every subject and every other field that can impact financial markets. तो आपका एक ब्रॉडर स्कोप आ जाता है. बिकॉज आप अगर सपोजली कमोडिटीज़ देख रहे हो और आपको दिख रहा है मार्केट गिर रही है, तो आपका सबसे पहले हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि अरे लेकिन पहले देखो कोई डिसीजन आया है क्या. तो दिस इज़ बिकॉज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी 40 घंटे दिए हैं. तो वो चीज़ जब आप इंडस्ट्री में काम करने लगते हो तो वो रिफ्लेक्ट होती है. एंड मोर ओवर आई थिंक रैंकिंग जो NIRF की रैंकिंग है या बहुत सारी चीज़ें, अभी रिसेंटली NIRF की रैंकिंग आई है एंड आई गो थ्रू लिंक्डइन अलॉट. सो उसमें भी काफ़ी लोगों का लाइक यू नो ये टेक रहता है कि जो रैंकिंग है वो कहीं पर से भी जस्टिफाई नहीं कर रही है. Exactly. लाइक यू नो जो एक्चुअल रैंकिंग है और जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड जो सर्विसेज हैं वो दिखते नहीं है. तो आई थिंक इसकी रैंकिंग का ना होना प्रॉपर्ली, एंड आई थिंक इस प्रोग्राम पे उतना ज़्यादा फोकस ना जाना, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यू डोंट गेट टू एडवर्टाइज अ लॉट. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आपको कभी एडवर्टाइज करते हुए ज़्यादा दिखेंगे नहीं जितना प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स करते हैं. सो आई गेस लाइक यू नो द मोर people would want to like you know understand the like you know field of finance, like when they want to study for the love of finance, they would definitely love this college and the recruiters love us. Okay. So talking about the placement, as my friends mentioned कि हमारा जो कॉलेज है गवर्नमेंट बेस्ड है, तो गवर्नमेंट एक तो मार्केट में परसेप्शन है कि IIMs आर बेटर, आर डूइंग बेटर. ऑल्दो कंपनीज भी एक्सप्लोर नहीं करना चाहती. हम हमेशा जब भी हम हमारी जो जॉब Safe रोल खेलना आते हैं, चाहते सेफ खेलना चाहते हैं, सेफ प्ले. और जो भी रोल्स हमारे यहाँ आते हैं मोस्टली दे आर इनटू द कोर फाइनेंस. कोर फाइनेंस मींस एक्सपीरियंस. अगर आपको कोर में बैठना है, इफ यू वांट टू बी अ गुड रिसर्च एनालिस्ट, आपको रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना है, तो एक्सपीरियंस मैटर कर जाता है.
ऑल्दो आईएम्स इस गेम में बहुत पहले से हैं, तो उनका एक परसेप्शन है कि वो जो बंदे आएंगे वो फिल्टर होकर बहुत बेस्ट आएंगे, तो एक है परसेप्शन मार्केट में, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम अपने आप को एडवर्टाइज करें, क्योंकि जो हमारे कोर्स करिकुलम है बहुत डिफरेंट है। सर्टिफिकेशन हमारे यहाँ कंपल्सन है। आप अगर फाइनेंस में काम करते हो तो यू हैव टू टेक सर्टिफिकेशन फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी। आप कोई भी स्टॉक या कुछ भी ऐसे डिसीजन नहीं दे सकते, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो वी हैव अ कंपल्सन कि हमें सर्टिफिकेशन क्लियर करने हैं। ठीक है। तो वी ऑलमोस्ट डू 8 सर्टिफिकेशन एंड बेस्ड ऑन चॉइस। कौन से मेजर है? मेजर जैसे रिसर्च एनालिस्ट, IE1, IA2 like the investment advisor 2, currency derivatives, equity derivatives, and merchant banking. So these are like the vast domain which covers the placement area. Like if you are clear with the concept of research analyst, then you can be you can do the equity research. So जो certifications है हमारे यहाँ वो compulsory हो जाते हैं, and based on choice हम अलग अलग certifications भी करते हैं जो कॉलेज में प्रमोट कर देता है। ठीक है, जैसे AIF में अगर जाना है तो जैसे currently I'm interested in commodity, तो commodity कर सकते हो। तो उनके कोर्स करिकुलम आपको इजीली क्लासेस में मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो टचअप्स हो जाते हैं। नहीं है तो फैकल्टीज हमें हेल्पफुल होती है कि जो सर्टिफिकेशंस एडेड नहीं है आप करना चाहते हो तो दे विल हेल्प यू आउट की सर्टिफिकेशंस के साथ। तो ये जो बेटर चीज़ें हैं ना जो हमारे साथ हो रही है, धीरे धीरे हम बहुत मतलब वर्क कर रहे हैं कि जो हमारे प्लेसमेंट्स को इम्प्रूव करे। एंड टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंजेस, जो एक्सचेंजेस हमारे यहाँ आते हैं, तो MCX भी आता है, NSE भी आता है, एंड वी गॉट इन टू द बेस्ट रोल लाइक इन IPO, इन रिसर्च डोमेन। तो हम सेल्स यूनिट में नहीं होते हैं थोड़े, ऑल्दो जब सेल्स से हम भागते हैं क्योंकि तो फाइनेंस में भी सेल्स हैं। राइट। सेल्स ऐसा नहीं कि मेन डोमेन नहीं हो सकता, क्योंकि मेजरली फाइनेंस भी एक सेल्स ही है। ऑल्दो कुछ भी वी लाइफ सेल में द कुछ भी सर्विसेज। करो, सेल्स तो हर चीज है ना। एक तो परसेप्शन हमारे यहाँ कि सेल्स अच्छा नहीं होता है, जॉब रोल, ये हर के दिमाग में, बट सेल्स बहुत इफेक्टिवली बहुत जगह पे काम करते हैं। फ्रंट डोमेन होते हो, दैट इज द बिजनेस साइड। राइट। तो सेल्स रोल से आप नहीं भाग सकते, बट हाँ दिस कॉलेज ऑफर्स अस द सेल्स एज वेल एज द मेन कोर डोमेन्स। दैट्स इट। ठीक। तो आपने पूछा था कि क्या हमारे पास स्टूडेंट प्लेसमेंट कमिटी है, तो वी हैव 2 आवर मेंबर्स फ्रॉम द स्टूडेंट प्लेसमेंट कमिटी ओनली, सो दे कैन शेड मोर लाइट अबाउट इट। So basically, since we are a batch size of 60, we are currently 8 members of placement committee as a student placement committee, and we have a full-fledged committee, which is a senior committee, which is comprising of the administration. So the program director herself is a head of the committee, and with her there are more support staff with support faculties who are helping us with the placements and guiding us through that. ठीक है। And yes, they are helping us. ओके। तो मैं जो समझ पाया हूँ आप लोगों की बातों से वो ये है कि प्लेसमेंट को आप 2 तरीके से देख सकते हो। एक तो ये है कि ठीक है, परसेप्शन है कॉलेजेस का और तुक्के से एक बार प्लेसमेंट हो गया, फिर आप करियर प्रोग्रेशन देखते हो। तो आपके यहाँ स्टूडेंट्स का करियर प्रोग्रेशन ठीक है, चूँकि फाउंडेशन अच्छा है, जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है आपको, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो रेलेवेंट है, तो लॉन्ग टर्म करियर बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प कर रहा है। मैं आपको बोलना चाहूँगा करियर प्रोग्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वो ठीक है नहीं है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे जो एलुमनाइज आए थे, दे सेड कि जब आप स्टार्ट करोगे, डोंट लुक वेयर यू स्टार्ट, लुक वेयर यू आर आफ्टर सम टाइम, एंड दे सेड कि यू व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न हियर इज पैरेलल टू नन। तो वो चीज़ उन्हें हेल्प की है, एंड दे एवरी सिंगल वन ऑफ देम पर्सनली उन्होंने यही बोला था कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग जस्ट स्टार्ट, मत देखो 2 साल की तपस्या है, एंड देन उनका करियर प्रोग्रेशन आप देखिए, दे आर इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन एक्सप्रेस, एंड यू नेम अ कंट्री, दे पीपल आर देयर। तो करियर प्रोग्रेशन बहुत अच्छा है, इवन IIMs से ज़्यादा अच्छा है। जो IIMs के कंपैरिजन में अगर आप देखें, हमारे एलुमनाइज आर डूइंग बेटर देन देम। तो ये चीज़ तो है, चूँकि कोर्स करिकुलम आपका उस तरीके से ही डिज़ाइन कोर्स करिकुलम भी वैसे डिजाइंड है, और जो प्रोफेसर्स हैं हमारे पास, दे आर मतलब दे आर द बेस्ट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे डिलीवर इट टू द कोर। तो आपके दिमाग में वो घुस जाती है वो तो चीज़। थोड़ी ब्रांडिंग, थोड़ी मार्केटिंग, थोड़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से की जाए तो इनिशियल प्लेसमेंट्स भी बेहतर हो सकते हैं, इसमें कोई डिनायल नहीं है। जो मुझे लग रहा है हम सेम पेज पे हैं इस बात। ब्लूमबर्ग टर्मिनल के बारे में फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत कम कॉलेजेस हैं जो एक्चुअल में जिनके पास टर्मिनल है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है उसके बारे में ज़रा बताओगे? बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर हो सकता है ये। जब फाइनेंस के लिए कॉलेजेस देखना स्टार्ट करते हो तो ये सवाल आपका ज़रूर होना चाहिए। तो दिल्ली एनसीआर में बहुत कम कॉलेजेस हैं गेस उनके पास, तो उसके बारे में ज़रा सा बताइए आप मुझे। So basically, we have a Bloomberg terminal, and from the starting of a second year, we are exposed to it, and we get the hands-on experience on how the Bloomberg works and what are the different types of what are the different fields, and we can explore equity research, commodity markets, currency markets on Bloomberg terminal. Our faculty, which are actually working on that and using it on a daily basis, helps us to guide through that, and
helps us to understand it better, and how can we use the knowledge from there in our practical life, and how can we understand the markets better. Okay. So we are having that kind of a faculty to student interaction on Bloomberg as well. Okay. I would like to add on it. आपने ये ऑब्वियसली सुना होगा, जो भी फाइनेंस में कभी भी काम करते हैं, ब्लूमबर्ग मार्केट कॉन्सेप्ट्स, दैट्स अ सर्टिफिकेट दैट एक्चुअली हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू, एंड वी ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स, हमें ब्लूमबर्ग मार्केट कॉन्सेप्ट्स वाला सर्टिफिकेट करना ही होता है. Okay. एंड व्हेन यू गो थ्रू द टर्मिनल, ऑब्वियसली देयर आर टू मेजर टर्मिनल्स दैट यू नो, ब्लूमबर्ग है और एक रेफिनेटिव एकॉन, एंड both of those are quite similar on the page of their usage कि कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है. So when you get to do the certificate, you understand why the terminal is actually being used in the industry. Right. आपको exactly वहाँ information क्या देखने मिलती है, why is it कि researchers इसको prefer भी करें. Like obviously जो ratios वो दिखाते हैं वो आप खुद भी calculate कर सकते हो, and specifically like you know वो जो चीज़ें दिखाते हैं उस पर रिपोर्ट्स भी पब्लिश होती हैं. So you get to see कि कौन से लाइक यू नो AMC या किसी भी बॉडी ने क्या रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं. एंड ब्लूमबर्ग इटसेल्फ, आप जब उसको एक्सप्लोर करने जाते हो, उसमें अपने आप में ब्लूमबर्ग इज़ अ ग्लोबल कंपनी, एंड स्पेसिफिकली जब आप उसको स्टडी करते हो, यू गेट मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स इट. सो you would find that our curriculum is very practical. Okay. And specifically I believe जैसे शिवम ने मेंशन किया that we have our faculty जो खुद काम कर चुके हैं, जो इंडस्ट्री में का पार्ट रह चुके हैं, तो वो आपको इस तरह का गाइडेंस देते हैं कि आपको एग्जैक्टली हम सिर्फ लाइक यू नो हार्ड स्किल्स पे नहीं, हम सॉफ्ट स्किल्स पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं. लाइक यू नो हाउ डू यू हैव टू लाइक यू नो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, आपको कैसे बात करना चाहिए, आपको किस तरह के एटिकेट्स आने चाहिए. बिकॉज कॉर्पोरेट में लाइक यू नो जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो भी मायने रखती है, बट जो नहीं दिखती है, द नॉन वर्बल क्यूज दैट अ पर्सन प्रोवाइड्स, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू इन योर करियर प्रोग्रेशन. And I believe that is one of the reasons that our alumni perform far better than any other candidate from IIMs, because हम personality development and like you know otherwise also like you know behavioral impact पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं. ठीक है. एंड वो विद टाइम आपको दिख जाता है. Okay. तो आपने ब्लूमबर्ग टर्मिनल से पूछा था, तो मैं उस पर एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा. ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई वॉज प्रोजेक्टिंग वेयर द करेंसीज विल गो. तो 30 साल तक के भी प्रोजेक्शंस किए हैं मैंने IRFC के लिए. तो ड्यूरिंग दैट वी नीडेड डेटा, हमें पास डेटा चाहिए होते हैं, तो ब्लूमबर्ग से ही मिलते हैं, क्योंकि इट इज़ अ क्लीन रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा. तो हमें कोई डेटा प्री प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती. इवन RBI's के डेटा में भी थोड़ी डिस्क्रिपेंसी होती है, तो ब्लूमबर्ग से मिलता था. तो जब हमें डेटा चाहिए था, तो मैंने अपने सर को बोला कि सर मुझे डेटा चाहिए होगा तब मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा. देन दे हैड ब्लूमबर्ग टर्मिनल. द कॉन्फिडेंस दे शो, उन्होंने कहा कि जा, क्योंकि हमें अपना हमने अपना लैपटॉप लेके जाना होता है इंटर्नशिप में, आपको वो बैठने नहीं देते अपने डेस्कटॉप पे. बट द कॉन्फिडेंस दे शोड कि हाँ तुम्हारे पास भी तो है AJNFM में, तो तुम चले जाओ, तुम बैठ लो, तुम निकाल लो ब्लूमबर्ग. तो दे अलाउड मी टू यूज़ देयर ब्लूमबर्ग कि जाओ डेटा निकाल लो. तो द कॉन्फिडेंस दे शो, तो वो मुझे नहीं लगता कहीं और मिलने वाली है. राइट. लाइक मोस्ट MBA कॉलेजेस में होता है केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन, या जो भी आप करिकुलम हो वो केस बेस्ड हो. तो हमारे पास लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिकॉज बहुत यहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत सारे हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बहुत सारे हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हैं, बिकॉज DEA का ऑफिस है यहाँ पे, तो और भी बहुत सारे मार्केट वेटरन्स हैं, तो या फिर रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं. तो द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप बहुत लोगों के अंदर आप मतलब केस स्टडी कर सकते हो, कोई भी लाइक द लाइव केसेस आप सॉल्व कर सकते हो जो मार्केट में फाइनेंस से रिलेटेड है. तो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स आते हैं जिस पर हम काम करते हैं. हमारे बच्चे मतलब जिसको मन होता है, तो जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं किसी प्रोफेसर के अंदर, तो वो डायरेक्टली हमें क्लास में इन्फॉर्म हो जाता है कि समवन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, अगर आपको मन है तो आप ज्वाइन कर सकते हो. सो द बेस्ट पार्ट कि हमें लाइव केसेस मिल जाते हैं जो करेंटली मार्केट में चल रहा होता है, जो फ्लोट हो रहा होता है. तो द बेस्ट पार्ट जो बहुत MBA रेयर है फाइनेंस ये होने. बहुत सारे एग्जैक्टली. कॉलेजेस में. तो आप पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना सकते हो जब आप पास आउट होकर निकल रहे हो तो. और मैं ये भी सेफली अज्यूम कर सकता हूँ कि ऐसे जगहों का एक्सेस आपको मिल जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नाम होने से जो दूसरे कॉलेजेस से मिलना डिफिकल्ट है. तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ बता सकते हो आप? बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस आती हैं. एक तो अब जब यहाँ पे करिकुलम जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बेसिस होने के, जैसे हमारे ऋषि मेहरा सर जो प्रोफेसर है, ही इज़ अ कंसल्टेंट एंड DE है, तो वो जो मार्केट कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ाते हैं वो बहुत ही सिमिलर होता है जो मार्केट में हमें काम करना होता है. तो जो रिलेशन है ना, जो रेशियोज हैं कि जो आप यहाँ पढ़ते हो और जो मार्केट में चल रहा है, बहुत सिमिलर है. जैसे कमोडिटी के लिए हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं, हिमांशु सर आते हैं, करेंसी उन्होंने पढ़ाया, तो जो मैंने काम करा वो एकदम सिमिलर था जो उन्होंने ट्रेन करा है.
बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि इन्फो कहाँ से लेना है, डेटा कहाँ से आएंगे। तो आप जब क्लास में लाइव वेबसाइट्स चल रहे हैं, आपको पता है डेटा कहाँ से निकालना है, डेटा पॉइंट्स कैसे मॉनिटर करना है। मोस्ट ऑफ अस होता ही है कि जो फाइनेंस के लिए कहते तो है फाइनेंस के लिए MBA फाइनेंस, बट फर्स्ट ईयर बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आपको पता ही नहीं था कोर डोमेन इन फाइनेंस है क्या। जब आप इंटर्नशिप में लैंड करते हो तो आपको नहीं आइडिया है। हमें ये जरूर आइडिया होता है क्योंकि हमने काम कर रखे होते हैं, क्योंकि हम डे 1 से फाइनेंस ही खेल रहे होते हैं। Right. तो हमें पता है कि कहाँ से करिकुलम आपको एक्सट्रैक्ट करना है, क्या कोर। जैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, रिस्क मैनेजमेंट अब धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन या जो भी कह लो AI का जो बिल्ट होते जा रहा है, तो AI बेस्ड होते जा रहा है। तो जो हमने रिस्क मैनेजमेंट अपना कोर्स ही पढ़ा वो पाइथन पे पढ़ा है, तो वो हमें बहुत एज दे देता है कि आपको पता होता है कि मार्केट में काम कैसे करना है, क्योंकि अब पेन पेपर वर्क कोई नहीं कर रहा, Right. दे आर वर्किंग ऑन AIs, राइट, तो वो में बहुत बेटर हो जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल इमर्जन भी आपके कोर्स करिकुलम का पार्ट है, आप में से सब लोग हो आए हो? नहीं अभी नहीं। अच्छा, तो उसका क्या बेनिफिट, रियल आउटकम कुछ है उस इमर्जन का? So basically, most of the colleges don't give you that kind of exposure. We are having two similar kind of exposure. One is for the domestic visit, which is a Mumbai attachment, and other is international visit, that is a Singapore attachment. So we have been through Mumbai. So we were there with NSE, BSE, RBI professors and consultants were there with us in NISM campus, and they were helping us to guide better and giving us knowledge. Similarly, when we will be going to Singapore, we will be having an industry exposure there, ओके, and we will be meeting people and closely understanding how their economy and how their country works in the specific field of finance. And that would be beneficial for us, not only in understanding our own country, but how the global economy works. And so I think that would be a great opportunity for us. मैं इसमें बताना चाहूँगा कि फाइनेंस वर्ल्ड ऐसा है कि टेंजिबल नहीं दिखता वो, तो टेंजिबल एक मोटिवेशन चाहिए होता है हर एक व्यक्ति को। तो टेंजिबल चीज़ें कैसे दिखेंगी, तो वो हमें मुंबई ले जाते हैं, लाइक NISM, RBI, SEBI। तो वहाँ जाके हम देखते हैं कि द वर्ल्ड इज़ बिग, ऑल्दो वी कांट सी इट, वी कांट फील इट एवरी सिंगल टाइम, बट इट इज़ देयर। तो वो एस्पिरेशन मिलता है। बट टू व्हाट लेवल वी कैन रीच, तो हमें सिंगापुर ले जाते हैं। तो सिंगापुर कंप्लीटली रिलाइज ऑन दैट ओनली, फाइनेंस वर्ल्ड। तो वो चीज़ जो एस्पिरेशन एक मिलता है ना, वो मुझे नहीं लगता है एक्सपोजर किसी और जगह मिलता होगा, क्योंकि आप बिना एक्सपोजर के आप अंधेरे में घूम रहे हो। बट जब एक्सपोजर मिलता है तो इट इज़ अ रे ऑफ लाइट, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कहाँ जा सकते हो, क्या कर सकते हो। इट हेल्प्स यू। ठीक है। लास्ट के 2 सवाल होंगे। पहला ये कि और क्या बेहतर कर सकता है AJ NIFM? आप लोगों ने 2 साल आपकी जर्नी को हो चुका है यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ें हैं जो फिक्स की जा सकती हैं और उससे आउटकम पे इम्पैक्ट सीधे सीधे आ सकता है? आई बिलीव जो हमारा कॉलेज और बेहतर कर सकता है इज़ एडवर्टाइजमेंट्स। यू नीड टू एडवर्टाइज, जो दिखता है वो बिकता है, ये हमेशा से Right, चलता है। right. एंड अगर आप दिखोगे नहीं, लाइक यू हैव टू शो कि अगर हम एसेंट्रिक हैं, लाइक ओके, अगर आप देखो भी कि लाइक हुएवर लाइक ग्रेटेस्ट एथलीट्स जो गोट बने हैं, लाइक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, दे हैव डन समथिंग दैट नो वन एल्स डिड. Like let's say Cristiano Ronaldo, let's say Usain Bolt, they specifically focused on their skill a lot and they tried to maximize and bank on their strengths. सेम चीज़ हमारे कॉलेज को करनी चाहिए कि क्योंकि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कॉलेज है ये, एंड वी लाइक हैव नेटवर्क्स विथ लाइक वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड लाइक डिफेंस पर्सनल and everyone, we should bank on our strengths and we should advertise it, like the kind of experience that our students get for their overall development, for on their education part, on their personality development part. We should advertise it, and moreover you need to ask what you want to get. जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं. Right. And our college specifically would have to ask for their own identity, for their own students packages as well. हमें already बताना पड़ेगा कि हमारे students जो पढ़ते हैं वो क्यों उनको अलग बनाता है. Right. वो करियर प्रोग्रेशन जो आपको विथ टाइम देखने मिलता है वो आपको क्यों देखने मिलता है. तो वी विल हैव टू आस्क दैट हमारा जो सैलरी पैकेजेस है दैट हैज़ टू बी एटलीस्ट, अगर IIMs को बीट ना करे तो IIMs के पार पे तो पहुंच जाना चाहिए. Agreed. And we need to ask for that. Why पोटेंशियल है admission आपके is less. कैंपस में. तो मैं बोलना चाहूँगा कि प्लेसमेंट जस्टिफाई करने चाहिए फीस को. Right. अगर वो उसको जस्टिफाई नहीं करता, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट. विदाउट मेंशनिंग माय वर्ड्स, इट दिस इंस्टीट्यूट्स प्लेसमेंट जस्टिफाई द प्लेसमेंट. मतलब फीस आप ROI ज़्यादा सबके लिए मैटर करता है. एग्जैक्टली, तो वो नहीं कर रहा. तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू
बेचना बी होगा मोर आपको विजिबल, वजन यस। को। तो वो चीज़ नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, देन देयर इज अकाउंटेबिलिटी इश्यूज। तो अकाउंटेबल करना पड़ेगा कि आप विजिबल करा रहे हो, कि आप प्लेस करा रहे हो, दैट लैक्स। और अब जब ये तक कोई उस पे एक्सक्यूज अपना भी नहीं हो सकता है ना कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो आप एडवर्टाइज नहीं करो। पूरी Ultimate- गवर्नमेंट ही जितना Exactly. एडवर्टाइज कर रही है खुद को, शायद ही इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने उतना एडवर्टाइजमेंट पे फोकस किया हो। और सबसे और जितना एडवर्टाइजमेंट के इंपॉर्टेंस को ये गवर्नमेंट समझती है, मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई गवर्नमेंट रही हो। तो इंस्टीट्यूशंस को आप कैसे छोड़ सकते हो? और मुझे भी वही देखिए, दिख रहा एक्शंस हैव बीन टेकन, बट इट नीड्स टू बी डन ऑन वॉर टाइम बेसिस। कितने कितने फास्ट कर रहे हो आप, यू नीड टू डिलीवर इट। और आपको विजिबिलिटी शो करनी होगी, एंड आप प्लेसमेंट को आप डिलीवर कर रहे हो, उसके लिए किसी को अकाउंटेबल बनाना होगा। नंबर्स में वो चीज दिखनी चाहिए। Exactly. जैसा आपने कहा, जो फी है वो एटलीस्ट अगर वो उतना नहीं होता है तो 70-80% का आरओआई तो होना ही होना एटलीस्ट चाहिए। 80% तो होना ही चाहिए। 80% तो होना ही होना लाइक चाहिए। एडिंग टू इट, अगर आप बाकी इंस्टीट्यूट्स भी देखो जो किसी भी लाइक बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे जो NISM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, वो SIB के अंडर आता है। अगर आप NIBM देखो, वो RBI के अंडर आता है। सो दे टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट देयर प्लेसमेंट शुड बी। एंड ऑब्वियसली जब हम लोग NISM गए थे, जब हमारा मुंबई अटैचमेंट था, व्हेन आई टॉक टू लाइक द कैंडिडेट्स हु वर स्टडीइंग देयर, तो NISM में इस लाइक जब उनके एग्जाम्स चल रहे होते हैं, इवन बिफोर दे हैव कम्प्लीटली कंप्लीटेड देयर प्रोग्राम, उनके यहाँ पे ऑलरेडी लाइक एक्सचेंजेस जितने हैं, मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज हो गए या फिर लाइक NSE हो गई और BSE हो गई, वहाँ से लोग आ जाते हैं रिक्रूट करने के लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इम्पैक्ट और उनका सपोर्ट हमें ज़्यादा लेना चाहिए। लाइक दिस टाइम जब योगा डे हुआ था, वी लाइक श्रीमती निर्मला सीतारमन मैम केम हियर, एंड तब हमें एग्जैक्टली फील हुआ कि हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कॉलेज है। बट अदरवाइज एक्सेप्ट आवर फैकल्टी एंड लाइक जो हमें पढ़ाते हैं, उनके अलावा हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। तो वो चीज़ होनी चाहिए। लाइक व्हेन दिस इंस्टीट्यूट कैरीज योर नेम, लाइक with great power comes great responsibility। तो coming from Ministry of Finance, जब ये कॉलेज आपके अंडर आता है, आपका इंस्टीट्यूट माना जाता है इसे, तो आपको और अकाउंटेबिलिटी ओनरशिप लेनी होगी आपको उसकी। इसमें ना एक एथिकल डिलेमा भी है इनके पास। प्रॉब्लम यह है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट कोलैबोरेट, क्योंकि पीपल परसेप्शन इज कि वो कल्यूडेड है। कि अगर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ज़्यादा ही कॉर्पोरेट के साथ अगर कुछ MOUs कर रही है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, अडानी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई बड़ा डील करता है, पीपल आर लाइक कि भाई ये इसमें ना कुछ घपला चल तो ही रहा है है। वो तो तो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑल्दो वो चाहते तो हैं, बट उनके पास एथिकल डिलेमा रह जाता है कि वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके हेल्प नहीं कर पाते। बट इसमें मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसा प्रॉब्लम आना चाहिए, क्योंकि बैच साइज छोटा है, आना तो 60 नहीं बच्चों चाहिए, को but they have an placement ethical कराना, dilemma। क्वालिटी प्लेसमेंट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है नहीं, जहाँ तक जो मुझे समझ आ रहा है। I'll add something. Most of the colleges का देखो होता है कि MOU साइन होते हैं। बहुत सारे जो कॉलेजेस पुराने एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं, उनके कुछ कंपनी के साथ MOUs होते हैं। तो वो हर बार मास टर्निंग करते रहते हैं कि वो मास हायरिंग करते हैं, तो हर बार वो रोटेट होते रहते हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम धीरे धीरे MOU साइन करें, जो बिग कंपनीज हैं, जो MNCs हैं, जो फाइनेंस के कोर फाइनेंस में डील कर रही हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो कंपनीज को चाहिए क्या? आप जो Exactly. कंपनीज को चाहिए वो तो आप दे रहे हो ना, आपके स्टूडेंट्स में वो चीज़ है, तो बस वो रीच आउट करने वाली बात है या उनको वो चीज़ समझाने वाली बात है कि भाई आपको जो चाहिए वो हम दे रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स में वो सारी स्किल्स हैं जो आप मार्केट में ढूंढ रहे हो, वो हमारा करिकुलम उस तरीके से रेलिवेंट है, आपको जो आउटकम हमारे स्टूडेंट दे सकते हैं और जो कि दे रहे हैं, जो एलम्स हैं आपके वो दे रहे हैं। तो बस वही है कि रीच आउट पे मुझे जो लग रहा है वो मिस कर रहा है कॉलेज, वो आपको फोकस करना चाहिए उस पर। ओके, स्टूडेंट्स के लिए एक सही एक्सपेक्टेशन क्या होगा अगर कोई आ रहा है तो? सही एक्सपेक्टेशन क्या होगा? प्लस मतलब वो सारी चीज़ें जो उसको पता होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ आके वो सरप्राइज ना हो कि यार, या शॉक ना हो कि यार ये तो पता ही नहीं था। ओके, प्रेफरिंग टू चॉइसेस जो भी हैं, आप जैसे MBA जब करने आते हो, मोस्ट ऑफ अस लाइक कि एक प्लेस काइंड ऑफ MBA जो हमारे लिए प्लेसमेंट एजेंसी बन जाती है, काइंड ऑफ right. इट डिस्क्राइब प्लेसमेंट एजेंसी। लेकिन बट मुझे लगता है कि वो बहुत डिफरेंट है। जो आप एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हो 51%, मोस्ट ऑफ अस आर अनएम्प्लॉयबल क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स लैग है। exactly. आप रोज चीज़ें चेंज होती रह रही है, मार्केट का ट्रेंड बदलते जा रहा है। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो, आपको कोर फाइनेंस पढ़ना है और कोर फाइनेंस में आपको बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप जो फुलफिल करना चाहते हो, आप इस कॉलेज को ले सकते हो। बिकॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉलेज कि आप कोर फाइनेंस सब कुछ पढ़ते हो, फाइनेंस फ्रॉम A to Z। तो ये जो चीज़ें फाइनेंस की है ना, कैपिटल मार्केट ज़्यादा फोकस करते हो, तो रादर कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड ऑल, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस के कॉलेज बहुत सारे हो जाते हैं, बट स्टडिंग लाइफ केसेस इन द कैपिटल मार्केट वो बहुत कम कॉलेज प्रोवाइड करता है, जो AJNFM प्रोवाइड करता है। सो अगर आप कोर फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो, तो यू कैन चूज दिस कॉलेज फॉर अ नॉलेज पर्पस। एंड लाइक वी आर वर्किंग ऑन प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट ठीक है, एक डिसेंट प्लेसमेंट है, लाइक आप 8 to 9 लाख आप प्लेसमेंट आपको मिल जाता है, तो बट नॉलेज मैटर करता है थोड़ा। ठीक है। I would like to add a little. Like coming to students' expectations, I would want to add कि देखो, अगर आप
खुद ड्रिवन हो, लाइक नथिंग बीट्स योर इनर एनर्जी. Right. अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो किसी चीज़ को परस्यू करने के लिए, तो मैं आपको कितना भी धक्का दे दूँ, आप नहीं कर पाओगे. बिल्कुल. सो व्हेन यू आर एक्चुअली चूजिंग अ कोर्स, एंड यही माइंडसेट मैं खुद लेके आई थी, बिकॉज आई न्यू कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में उतना ज़्यादा आपको Placements प्लेसमेंट पे नहीं सपोर्ट नहीं मिलती है. वो आप कहीं पे भी, आप चाहे इंजीनियरिंग में देख लो, लाइक यू नो कोई भी कॉलेज जो इंजीनियरिंग में भी हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आपको उतना सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं. तो आपको हमेशा एक गोल सेट करके रखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है. जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे भी जब मैंने पहला ईयर पढ़ा, आई वॉज सर्चिंग कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एंड व्हाट सर्टिफिकेशंस. ऑब्वियसली जब आपके पास सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, यू विल हैव टू ऐड ग्लोबल सर्टिफिकेशंस जो आपको एक विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सके, लेकिन सो दैट यू आर रिकॉग्नाइज्ड. आपने MBA के साथ लेट्स से CFA किया या फिर CMT किया, या फिर लेकिन देयर आर लाइक यू नो CQF हो गया जो कि क्वांट फाइनेंस में होता है. सो यू हैव टू फोकस ऑन सर्टिफिकेशंस, योर स्किल्स. यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स अ लॉट. Right. चाहे वो Excel हो गया, SQL हो गया, Python हो गया, लाइक यू नो यू विल हैव टू ब्रिंग इट टू अ पोजिशन जहाँ पे आप अपने आप को जस्टिफाई कर सको कि अगर कॉलेज में 12 लाख का नहीं भी आता है, तो आप चाहे campus भी कैसे ऑफ निकाल कैंपस सकते करो, चाहे ऑन कैंपस भी करो, negotiate with your company, tell them what you can deliver, Right. show them like you know via projects you can show them what exactly do you bring to the table. That's where the students can actually gain on their placements and always play on their strengths. तो उनका एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि कॉलेज से आपको सपोर्ट मिलेगा, बट यू हैव टू ब्रिंग योर ओन एनर्जी, योर ओन इंटरेस्ट एंड योर ओन लाइक यू नो ड्राइव फ्रॉम विद इन. यू हैव टू बी पैशनेट. ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री होगी, बहुत सारे अगर आप डेवलप इकोनॉमीज़ को देखो तो वहाँ पे कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेसमेंट कराना नहीं है. प्लेसमेंट एजेंसीज़ वाला जो काम है वो इंडिया में हो चुका है. अनफॉर्चुनेटली कॉलेजेस का काम नॉलेज देना होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के अराउंड में फोकस होना चाहिए, वो हो रहा है. बट ठीक है, आप ऐसे मार्केट में हो जहाँ पे प्लेसमेंट है डिसाइडिंग फैक्टर, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए कॉलेज को भी. हाँ, कुछ ऐड कर रहे हो. So basically, like what you said, कि skill development सबसे ज़्यादा important है. So basically, during my internship also, my co-interns who were with me, उनकी internship was only for the 4 weeks, like 1 month. हमारी internship 2 महीने के लिए थी. Okay. तो we were there in the industry doing work for 2 months straight. So एक ये added advantage है, हमें industry के exposure ज़्यादा है. Our skills are more better than them. So अगर अभी आपका expectation ये है कि you are here for learning finance and knowing what finance is about, या आपने आपको upskill करने के लिए, so I think skills आपके पास sufficient होंगे. आपका initial package अगर उतना अच्छा नहीं भी है, तो that skill will help you to grow further. And what I think कि हमारे alumni भी इसीलिए इतने अच्छे better positions पे आज हैं, क्योंकि उनके skills यहाँ पे जो उन्होंने learn किए, they are helping them in the future and they will grow. ठीक है. ऑन दैट आप कुछ ऐड करना चाहोगे? आई वुड जस्ट से कि जो भी कैंडिडेट्स है वो यहाँ आए तो उनका एक पर्पस, जो प्राइमरी पर्पस हो कि इफ़ दे आर क्यूरियस एंड पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस, वो अगर उनको है, बिकॉज यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में आप 40 आवर्स डेडिकेट कर रहे हो, एंड बाय द टाइम यू हैव मोस्टली कवर्ड योर MBA, यू नो कि इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है तो इसमें अगर है मैं ये स्कोप देख सकता हूँ आगे. एंड ये भी है कि हर इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस होता है इन एनी MBA कॉलेज, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर ईच वन ऑफ देम, कि आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हो एक्टिविटीज़ में. अगर आप ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो देन nobody can help you. So you have to push yourself and indulge yourself in all the activities that interest you. ठीक है. ऑन दैट नोट देखो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है इस कैंपस में आके, प्राइमरी फोकस हमारा हर बार स्किल का ही होता है, और मार्केट में अब सफिशिएंट डेटा है, रिसर्च है कि अब स्किल ही मैटर करेगा. आप चाहे बड़े कॉलेज से हो, छोटे कॉलेज से हो, अगर आप स्किल्ड हो तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, और लॉन्ग टर्म करियर में स्किल ही है जो आपको एक बेहतर करियर बनाने में हेल्प करेगा. तो एज ऑफ नाउ जो मुझे दिख रहा है, इन्होंने बताया कि प्लेसमेंट्स के अराउंड में काम हो रहा है, बट अगर आप प्योरली फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है और आपको फाइनेंस में करियर बनाना है और स्किल आपके लिए प्राइमरी चीज़ है, तो आप AJN IFM को कंसिडर कर सकते हो. केवल प्लेसमेंट आपको चाहिए और वो तुक्के से पता नहीं कैसे हो जाता है, तो फिर शायद आप डिसअपॉइंट हो गए. बट प्लेसमेंट के अराउंड में भी काम हो रहा है. करियर चाहिए तो फिर AJN IFM को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो फाइनेंस में लॉन्ग टर्म करियर के लिए. थैंक यू सो मच, एंड आई होप जो भी डाउट्स हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को वो रिजॉल्व हो गए होंगे. स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो. थैंक यू. बाय.